All right. So everyone, put your attendance. So, good evening again. We are going to continue from where we left yesterday, right? So, let me just present my screen, then tell me whether it is visible to you or not. I hope it is visible, right? So, students, in the last class, in yesterday's class, we've seen, okay, somebody is entering. Screen is visible or not? Let me just know. Please tell me. My screen is visible, students? The chapter which I am trying to show you, is it visible? Okay, some of you are saying no. Kadambari is saying yes. Is it? Just a second. I'll stop sharing and I'll share again. Just a second, students. I don't know whether what problem is there. Okay, so let me just exit from the meeting and I'll join back. Okay. All right. So I hope सबको अभी screen दिख रही है, right? Good. So what we have seen, students, in the last class, anyone remembers? Yesterday only was our last class, right? So in yesterday's class, we have seen value of polynomial. How do we calculate value of polynomial? And then we have seen remainder theorem, these two theorems or these two things. So based on these two topics, we are going to solve some of the examples today. Okay. So I think we have taken factor theorem as well, or not. We didn't, I think. Yeah, this was the last topic, that is k is equals to 4. We had found out the value of k is equals to 4 and the factor theorem is remaining, right? So अभी मुझे बताना कि रिमाइंडर थ्योरम किस किस को समझ में नहीं आया, कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। जिसको समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, सर मी आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके विशाल, तुम्हें समझ में नहीं आया, बाकी सब लोगों को समझ में आया है, ठीक है। सो रिमाइंडर थ्योरम इज, नाउ लिसन टू मी। ओके ओके, वेरी गुड। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है फिर से एक बार सुनो। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट वन इज डिवाइडेंड पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज डिवाइजर पॉलिनोमियल, बराबर। तो जब हम डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो या तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा या फिर कुछ कुछ वैल्यू मिलेगी, बराबर। सो टू फाइंड आउट द रिमाइंडर and quotient, we have to follow certain methods, linear division. After that wait अभी तक मैंने आंसर का मतलब सवाल का आंसर कंप्लीट दिया नहीं है। ओके, so to find out remainder and quotient, what we do, we use different methods of division: synthetic division, linear division, long division method, and all those, right? So these methods are quite lengthy, लेकिन अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है, we only want to find out remainder, we don't need quotient. So in that case what we can do, we can put the value of the divisor in the polynomial.
मतलब अगर हम उस डिवाइजर की वैल्यू अगर x प्लस टू डिवाइजर है तो x इज इक्वल्स टू माइनस टू अगर मैं उस पोलिनोमियल में रखता हूँ डिवाइडेड पोलिनोमियल में, तो you will get the remainder. Is it clear now, Vishal? It's clear, I think, for everyone. Very good. So let's take next topic. So this paragraph is all about that only, whatever we have seen. Okay. So factor theorem is what? Now, if 21 is divided by 7, then the remainder is 0. Therefore, we say that 7 is the factor of 21. In the same way, when a given polynomial is divided by the divisor polynomial, and if the remainder is 0, then we say that the divisor polynomial is the factor of dividend polynomial. अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर से एक डिवाइडेंड रहेगा, एक डिवाइजर रहेगा, और अगर हम उस डिवाइजर की वैल्यू डिवाइडेंड में रखते हैं और वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड इफ इट कम्स जीरो, मतलब क्या, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो डिवाइजर था वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अभी मैं इसे एग्जांपल देके भी बताऊंगा। मैंने आपको कुछ बताया था ना कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके रूट्स कैसे निकालना है, ऑल दोस थिंग्स। तो हम धीरे धीरे वही सीख रहे हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इफ p of x, see here, p of x is equals to x cube plus 4x minus 5 is divided by x minus 1. This is dividend, this is divisor. Then find the remainder and hence determine whether x minus 1 is a factor of p of x or not. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है सबको? किस किस को रिमाइंडर फाइंड आउट करना नहीं आता है? अभी मेरे पास p ऑफ x है, डिवाइडेंड है, डिवाइजर है। चलो एवरीवन फाइंड आउट द रिमाइंडर फॉर दिस एग्जांपल। रिमाइंडर फाइंड आउट करो, बाकी का सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। एवरीवन गो फॉर इट। व्हाट इज द रिमाइंडर स्टूडेंट्स? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम? सी इफ यू आर सॉल्विंग, इफ यू आर so yeah Kadambari, for first one, right? See, if you are solving, and one more thing, it has started raining at my place. Okay, so it may happen that electricity may interrupt or Wi-Fi may interrupt. So in that case, please wait for 1 or 2 minutes. I'll be right back. Okay, all right. So चलो ठीक है, अभी कादम्बरी ने तो सॉल्व करना शुरू कर दिया है क्वेश्चन। अभी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि समझ में नहीं आया कि सर हमें करना क्या है? See, I'm repeating again and again. This is very important chapter for you, for 9th standard, 10th and so on. मतलब बहुत important chapter है ये, and this is one of the easy chapters. मतलब कुछ easy chapters होते हैं। Okay, okay, okay. Some of the students are finding answer. That's really great. ठीक है, चलो आयुष ने, वैष्णवी ने और विशाल ने और कादम्बरी ने भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया है, 4 स्टूडेंट्स ने, और सभी का आंसर आता है 0। ठीक है, तो ऐसा कौन स्टूडेंट है हमारे क्लास में जो अभी आंसर नहीं दिया है? वेदांत। वेदांत, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनी नेटवर्क इशू एट योर साइड? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? ठीक है, चलो अभी सब लोगों ने फाइंड आउट तो कर लिया। सो हु इज विलिंग टू एक्सप्लेन हाउ डिड यू फाइंड आउट 0 एज अ रिमाइंडर? आप में से कौन बताएगा? ऑब्वियसली कादम्बरी तो बताना चाहेगी क्योंकि उसने कल भी दो आंसर का जवाब दिया, सॉरी दो सवालों का आंसर दिया, राइट? सो एक्सेप्ट कादम्बरी, एनीबडी एल्स इज इंटरेस्टेड टू टेल तुमने आंसर कैसे फाइंड आउट किया? यू कैन टेल इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट। एनीवन इंटरेस्टेड? आप लोगों ने रिमाइंडर 0 फाइंड आउट किया, विच इज करेक्ट, बट कैसे? हाउ डिड यू डू दैट? Nobody? Kadambari, do you want to try?
स्टूडेंट्स, आपने आंसर फाइंड आउट किया है, जो कि सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। लेकिन आंसर फाइंड आउट करने के लिए तो आप लोगों ने क्या किया, वो बताओ ना मुझे। चलो ठीक है, माइक अगर आपको ऑन नहीं करना है तो चैट बॉक्स में बता दो। बट आई डोंट लाइक चैट बॉक्सेस रियली। ओके ओके, कादम्बरी, very good. Turn on your mic, Kadambari, and tell me. Yes, sir. We have to use reminder theorem, and uh, we have to take divisor of value of polynomial. Okay, nice try, very good. See, कादम्बरी ने रिमाइंडर थ्योरम कहा, इसमें ही सब कुछ आ गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, हमारा जो डिवाइजर है उस डिवाइजर की वैल्यू, अभी यहाँ पे डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स, बाकी लोग बताओ डिवाइजर क्या है, व्हाट इज डिवाइजर इन दिस एग्जांपल, एवरीवन प्लीज आंसर, व्हाट इज डिवाइजर। पहले एग्जांपल में डिवाइजर क्या है, सी इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। x माइनस वन इज द डिवाइजर, करेक्ट, यस। डिवाइडेंड तो सबको पता है, डिवाइडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ये डिवाइडेंड है। सो x की वैल्यू क्या रखोगे स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या रखोगे, सब लोग वन रखोगे, वेरी गुड। सो x की वैल्यू वन रखने के बाद में आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सो ये आप बता नहीं सकते सर हमारा डिवाइजर जो है वो x माइनस वन है, इसकी वजह से हम x की वैल्यू वन रखेंगे, और जब इस इक्वेशन में हम वन रखते हैं तो वन का क्यूब होता है वन, प्लस फोर एक्स यानी कि फोर इंटू वन होता है फोर, वन प्लस फोर होता है फाइव, और फाइव माइनस फाइव होता है जीरो। दैट्स इट, सिंपल इजंट इट। तो इतना सिंपल है तो सब सब लोगों ने बताना चाहिए ना, हर बार कादम्बरी ने ही मतलब बताना जरूरी है क्या। चलो अभी नेक्स्ट टाइम देखता हूँ मैं कौन आंसर बताता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब आप लोगों ने जो आंसर फाइंड आउट किया विच इज करेक्ट। सो अगर रिमाइंडर जीरो है तो जो हमारा डिवाइजर है दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो इन दिस केस इज इट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो x माइनस वन है ये एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फाइव का फैक्टर है या नहीं है, इट इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर। क्यों फैक्टर है, क्यों फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमने वेरीफाई किया और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइजर जीरो आ रही है। तो वैल्यू अगर रिमाइंडर की जीरो आती है तो इसका मतलब वो जो डिवाइजर है उस डिवाइडेंड का फैक्टर है। ओके, दिस इज इट। सेकेंड एग्जांपल में देखो, अभी मैं सेकेंड एग्जांपल में ज्यादा आपको लंबा खींचूंगा नहीं, ये हमारा सेम डिवाइडेंड है, सेम डिवाइडेंड है, इफ यू कैन सी कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फाइव सेम डिवाइडेंड है, लेकिन यहाँ पर डिवाइजर चेंज हो गया है, एक्स प्लस टू डिवाइजर हो गया है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम रखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, विल पुट माइनस टू, विल पुट माइनस टू, टू नहीं विशाल, माइनस टू, हाँ। तो माइनस टू जब रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज माइनस ट्वेंटी वन। सो इज इट जीरो, ये जीरो नहीं है, इज इट जीरो, इट इज नॉट जीरो, राइट, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। सो दैट्स व्हाई x प्लस टू जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है क्या, इज इट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, नो, ऑब्वियसली नो, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। सो अभी देखो वन बाय वन, मतलब आपने पहले किस तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं वो देखा, उसके बाद में आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा कि हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद में यू लर्न अबाउट हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट। मतलब अगर आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं सीखा है सो क्या कैन यू स्टडी फैक्टर थ्योरम, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सिलेबस रहता है, सारे लेक्चर्स करने होते हैं और सारा पढ़ना होता है। ओके,
So verify that x minus 1 is a factor of the polynomial x cube plus 4x minus 5. तो obviously यहाँ पे already हमने verify किया ही है, ठीक है. I think they must be saying verify x plus 1. किसी के बुक में यहाँ पे x plus 1 है. Verify that x plus 1 is a factor of polynomial. किसी के बुक में है 1 है x plus 1 नहीं है. All right, no problem. ठीक, no problem. Fine. चलो. So check whether x minus 2 is a factor of x cube minus x square minus 4 by using factor theorem. तो यहाँ पे हमें डिवाइजर दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, we just have to put the value, we have to check remainder. If it is 0 then it is a factor, if it is not 0 then it is not a factor. As simple as that, right? So practice set 3.5. तो practice set 3.5 में से हम most of the examples यहाँ पे लेंगे. Find the value of the polynomial 2x minus 2x cube plus 7 using given values for x. Now nobody will solve like same. Okay, कादम्बरी तुम्हें x is equals to 3 के लिए उस polynomial की value find out करनी है. कादम्बरी will do that. Okay, कादम्बरी will find value of this polynomial for x is equals to 3. After that, who are there? Ayush and Vaishnavi. Ayush and Vaishnavi, you will find out the value of polynomial for x is equals to -1. And Vedant and Vishal. Vedant and Vishal will find out the value of polynomial for x is equals to 0. चलो, तो आप अभी आप 3 टीम में हो. आप 3 टीम के मुझे 3 आंसर्स आने चाहिए. कादम्बरी का आंसर रहेगा x is equals to 3 के लिए. नेक्स्ट कौन है? आयुष एंड वैष्णवी. तुम दोनों का आंसर रहेगा x is equals to -1 के लिए. और जो लास्ट वन है वो x is equals to 2 का आंसर कौन देगा? वेदांत एंड विशाल. Let us see who finds the answer first. But correct answer is appreciated. Okay, don't be in a hurry and make mistakes. Everyone is solving? Find the value of polynomial 2x minus 2x cube plus 7. Okay, it is -41. Let me check. 2 into 3 is 6. 3 cube is 27. 27 2 is 54. 54 plus 6 is 48. 40. Yeah, it is correct. Kadambari has got her answer correct. What about others? Kadambari, you can try other examples also, no problem. Vaishnavi, Ayush, Vishal, Vedant, what are you doing? Are you even there in the class? Okay, Ayush has got the answer 7. Let me check. 2 into -1 is -2 and -1 cube is -1 itself. So 2 gets cancelled. Okay, okay. Good, good, Ayush. Very good. Vaishnavi, have you got the answer or not? चलो बाकी लोग. Vedant and Vishal, what are you doing? Both of you, please write in the chat box. Are you there? Yes or no? Are you listening to me? All right. At least you are listening to me. So करना क्या है हम ये जो एग्जाम्पल है सबसे इजी एग्जाम्पल तो तुम्हारा है. You have the easiest example. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल्स टू 0 के लिए. तो मतलब करना क्या है? x की वैल्यू 0 रख दो. That's it. 2x will become no. How it can be 0?
It is again going to be 7. Ayush has got the answer for both. देखो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे. ओके वैष्णवी, गुड. सी x इज इक्वल्स टू 0 हमें रखना है स्टूडेंट्स. सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये x क्यूब भी 0 हो जाएगा, प्लस 7. तो क्या बचा? 7 बचा ना. इसे सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है? वी कैन फाइंड द आंसर ओरली. वी डोंट नीड टू राइट अ सिंगल वर्ड, इज इट, और अ सिंगल what we can say digit. Now that's it. This is for third one. Now second one में किसी को डाउट है तो second one हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. So see students, second one is quite harder. It was hardest, it is little harder. So 2x minus 3x cube plus 7, यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है? -1 रखनी है. So 2 as it is रहेगा, x की जगह पे हम -1 रखेंगे, -2 as it is रहेगा, -1 whole cube plus 7. Now 2 into -1 is -2, right? Now -1 cube is -1 itself, and -1 into -2 is +2, and +7. So +2 minus 2 gets cancelled. It is 7 only. Clear with all the examples? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Let's move further. ठीक, let's move further. Now for each of the following polynomial, find p of 1, p of 0, and p of -2. So Vishal and Vedant, find p of 0 for first one. Kadambari, find p of -2 for first one. And other team, Vaishnavi and Ayush, find p of 1 for first one. p of 1 find out करना है first one के लिए, आयुष और वैष्णवी. कादम्बरी p of -2 कैलकुलेट करना है, एंड विशाल एंड वेदांत p of 0. कैलकुलेट करो, चलो जल्दी. डाउट नहीं है, अच्छी बात है. वेरी गुड. Just a second, students. You please solve it. I'll be back in few seconds. Okay. Anyone got any answer? Okay, Kadambari has got -8. That's really nice. Very good. -8, correct answer. Vishal and Vedant, what is wrong with you? I gave you the simplest example and you're still not solving. Okay, Ayush has got 1. That's nice. Really good. विशाल और वेदांत, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मैंने आपको कहा कि p ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, यानी कि x की जगह पे 0 रखना है. तो 0 का क्यूब क्या होता है? What is cube of 0? All right, Kadambari says 0, but I'm not sure whether it is 0 or something else. Okay, Vishal also says it's 0. Okay, then it has to be 0. तो 0 का क्यूब 0 होता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 लिखना है ना. ओके, नाउ चलो सेकेंड वन फाइंड आउट करो. p of 0 फाइंड आउट करो सेकेंड वन का. एवरीवन फाइंड आउट p of 0 for second one. You don't need to solve. You can do it orally. That's it. 5. What will be the value of polynomial for third one? Kadambari, p of 0 for third one. Okay, it is for second one. 5 is for second one. तीसरे के लिए क्या है? p of 0 for third one. Isn't it 0? Yeah, it's 0. सारे टर्म्स में x है ना, तो x की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो वो कंप्लीट इक्वेशन 0 बन जाएगा. ठीक है, तो इतना टाइम मत लगाओ.
ओके, हमें बाकी सारा भी एग्जांपल सॉल्व करने हैं ना। सो इतने सिंपल एग्जांपल में अगर तुम टाइम लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m cube plus 2m plus a is 12, for m is equals to 2, then find the value of a. Who can find the value of a? I want you people to solve this. Who can find out the value of a? Please try it. I'm deliberately not solving it, okay? Because I know I solve the example. Uh, Maybe one or two students also solve with me, but rest of you are not neither writing the example nor solving. So do it yourself. So I'll check your answers only. Okay? And quickly respond. Even if, see, Vishal, Vedant, everyone, Vaishnavi, if you don't know the answer, tell me, sir, we don't know the answer. So that our time will be saved. बराबर ना, हमारा time waste नहीं होगा ना. So I'm waiting here for your response and you are not responding. That's not correct, right? So can you find out the value of A? Yes or no, everyone? Please put that in the chat box. If it is no, then I'll solve it. All right, Vishal says no. Okay, Kadambari says A value of A is 0. Is it? Okay, we'll see. Okay, ठीक है. विशाल देखो. Focus now. M cube plus 2m plus a is 0. Value of polynomial. इस polynomial की वैल्यू कितनी है? 12 है. कब? जब m की वैल्यू 2 है. मतलब इस पॉलिनोमियल में जब हम m की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए. मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 12 इज इक्वल्स टू, अभी m की जगह पे मुझे क्या लिखना है? 2 लिखना है. 2 क्यूब. मैंने m क्यूब की जगह पे 2 क्यूब लिखा. प्लस 2, ये 2 एज इट इज लिखा. m की जगह पे मैं फिर से 2 लिखूंगा प्लस a. अभी 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है. 2 क्यूब 8 प्लस दिस 2 इंटू 2 इज 4. 4 प्लस 8 इज 12. अभी ये जो 12 है लेफ्ट साइड में जाएगा तो 12 के साथ माइनस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. Kadambari has got correct answer. A will be 0. All right. I hope you understand this now. Or okay, Vaishnavi, very good. Now let's go to the next question. For the polynomial mx square plus 2x plus 3, if p of minus 1 is 7, then find m. तो यहाँ पे हमें माइनस वन वैल्यू किसकी रखनी है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू हम माइनस वन रखेंगे या फिर p की m की वैल्यू माइनस वन रखेंगे? विच वैल्यू शुड बी प्लेस्ड हियर? ये भी तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमें mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है और बताया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन के लिए p ऑफ माइनस वन इज 7 है. देन फाइंड m बोला है. तो माइनस वन तो हमें इस इक्वेशन में रखना है, ये तो हमें पता चल गया बराबर ना. लेकिन किसकी जगह पे रखेंगे? मतलब x की जगह पे रखेंगे या फिर m की जगह पे रखेंगे? हमें इसे x की जगह पे रखना पड़ेगा. वेरी गुड वैष्णवी. हमें यहाँ पे x की जगह पे रखना पड़ेगा क्योंकि m तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो उसकी जगह पे हम कैसे रख सकते हैं? सो रिमेंबर दिस. So then put the value of minus 1 in place of x. So m into minus 1 square minus 2 as it is, x is minus 1 plus 3 is equals to how much? Is equals to 7. मतलब जब हम x की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, राइट? सो minus 1 square is 1 only and 1 into m is m only. तो इसकी जगह पे मैं सिर्फ m लिखूंगा. Now minus 2 into minus 1 is plus 2 and plus 3 is equals to 7, right? So m is equals to 2 आएगा. m is equals to 2 कैसे आया? किसको नहीं समझ में आया? क्लियर? m is equals to 2 आना चाहिए. वेरी गुड. चलो ठीक है.
m प्लस 5 होता है, 2 प्लस 3 इज 5, 5 जब राइट साइड में जाएगा तो वो 7 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो m इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, let me just erase this. So divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using remainder theorem. तो हमें यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। डू वी रियली नीड टू परफॉर्म डिवीजन? आई गेस वी डोंट। हमें यहाँ पे सिर्फ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 के लिए। तो x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? x की वैल्यू हम -1 रखेंगे। x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखो और जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द रिमाइंडर। करेक्ट और नॉट? So let's solve it together. Minus x square, so minus 1 square minus 7, x is -1 plus 9, so it would be equal to, no, we have to find out the value of this, na? So it won't be equal to anything. Minus 1 square is 1, minus 1 into minus 7 is plus 7, plus 9 is equals to 17. So remainder क्या आया students? It is remainder. Remainder for first one is 17. Get it? Good. All right. So पहले का तो आंसर आप मैंने आपको निकाल के दे दिया। अभी सेकंड और थर्ड का ट्राई करो। चलो सब लोग सेकंड और थर्ड का। अभी सेकंड कौन सा है? लेट अस सपोज लेट इट बी, सेकंड छोड़ दो, लिव इट, थर्ड वन सॉल्व करो। आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि यहाँ पे अभी आपको m की वैल्यू 3 रखनी है, तो 3 वैल्यू रखोगे तो m का क्यूब हो जाएगा 27, सो 54 इंटू 27 तो बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जस्ट टेल मी, आपको समझ में आया आपको क्या करना है इस थर्ड वाले में? ऐसा कोई है कि इसमें समझ में नहीं आया सर, हाउ 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 डू वी फाइंड आउट रिमाइंडर फ्रॉम दिस? ऐसा कोई है? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको पता है कि सर हम m की वैल्यू 3 रखेंगे और बाकी सारे कैलकुलेशंस करेक्ट करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। सो इन दैट केस वी डोंट नीड टू सॉल्व। ओके, यू कैन डू इट एज योर होमवर्क, राइट? गुड, चलो ठीक। सो सिर्फ m की वैल्यू 3 रखना है यहाँ पे। इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2, then the remainder is 50, then find the value of m. ओके, तो मैं इसके लिए एक न्यू ब्लैंक पेज लेता हूँ जिससे कि हमें डिस्टरबेंस ना हो। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स सो दैट आई कैन टेक द ब्लैंक पेज फॉर अस। It is very complicated here to solve, isn't it? So what is the question? Question is, this is the polynomial y cube minus 5y square plus 7y। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, बाद में आपको प्रेजेंट करूंगा। y cube minus 5y square प्लस 7y। वेट, अभी आपको नहीं दिखेगा, जब मैं दिखाऊंगा देन यू विल बी एबल टू सी। सो ये हमारा डिवाइडेड हुआ, डिवाइजर जो है, डिवाइजर हमारा है y प्लस 2, और इस रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो है 50। ओके, आई होप द न्यू स्क्रीन इज विजिबल नाउ, व्हाइट बोर्ड, राइट? सो यहाँ पे हमें सारी चीजें दी गई है, सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है। सो डिवाइजर इज दिस y प्लस 2, सो यहाँ पे y की वैल्यू हमें -2 रखना पड़ेगी, राइट? वी नीड टू पुट द वैल्यू एज -2। सो सॉल्व दिस। यहाँ पे -2 क्यूब माइनस 5 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m इज इक्वल्स टू 50 आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रिमाइंडर 50 है, हमें बताया है ना। तो जब हम ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो एग्जैक्टली हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर ही मिलता है। तो हम इसको इक्वेट करेंगे 50 से।
So minus 2 cube is minus 8. Minus 2 square is 4. 4 into 5 is minus 20. Minus 7 into, sorry, plus 7 into minus 2 is minus 14. Plus m is equals to 50. आई होप किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट? अभी this is 20 plus 14 is 34. 34 plus 8 is minus 42. So minus 42 plus m is equals to 50. So m will be equal to 50 plus 42, that is 92. This is 92. Okay, so value of m is 92. I will write again. Any confusion, doubt, or did I made any mistake? m is equals to 92 आया? समझ में आया सबको? कैसे आया? ऐसे ही सॉल्व करना है. गुड. ऐसे जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी ले पाऊंगा ना नेक्स्ट वाला, है ना? ठीक, चलो. I think somebody is missing now. 1 2 3 4 no. Okay, let it be that missing person missing. Use factor theorem to determine whether x plus 3 is factor of this or not. So you will tell me now. I'm not going to solve it. You tell me whether x plus 3 is factor of this polynomial or not. I need just answer as yes or no. Okay, tell me whether x plus 3 is factor of that polynomial x square plus 2x minus 3. It seems quite easy, I think. Everybody will find out. That should not be the answer. मुझे आंसर क्या चाहिए? Yes or no में चाहिए. Whether this is a factor of that polynomial or not. If it is factor, then put yes. If it is not factor, then put no. So Vaishnavi says it is factor. X plus 3 is factor of this. And remember, students, you need to revise the things. If you don't revise, you will forget it. Kadambari says it's not a factor. Okay. So there is a contradiction. Oh, Ayush also says it is not a factor, right? Really? Okay. So Vishal, can you tell me why it is not a factor? माइक ऑन करके बताओ विशाल, फैक्टर क्यों नहीं है? ठीक है, कादम्बरी says now it is a factor. Okay, she might have made mistake somewhere. Now she has corrected. Okay, okay, good. No problem. Vishal, can you tell me why this is not a factor? Ayush, can you tell me? Did you realize your mistake? Where did you make the mistake? सी, यहाँ पे हमें x की वैल्यू -3 रखनी है. सो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है. 9 प्लस, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बोलने से क्या फायदा, है ना? नाउ इट इज फैक्टर. ओके, सी, x प्लस 3 यानी कि मुझे x इज इक्वल्स टू -3 रखना है यहाँ पे. सो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 is equals to what? We have to find out what is the value here. So -3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा. 2 into -3 is -6 -3. So -6 -3 is 9. 9 gets cancelled, so it is 0. If remainder is 0, that means it is a factor of the given polynomial. So the answer should be yes for everyone, right? Okay, let's solve few more examples now.
if x minus 2 is factor of x cube plus mx square plus 10x plus 20, then find the value of m. Who is confident of doing this example at least? किस किसको ऐसा लगता है कि सर मैं I can find the answer? Okay, Kadambari and Vishal, you think you can solve this? Please try it. Find out the value of m then. Quick, everyone. जिसको लगता है मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, try to find out. When you sit for my class, please keep your notebook and pen with you always. Okay. Vaishnavi, Ayush, are you solving? Vedant, are you there? Okay, solving. Very good. Very good. I'm happy to read that. Anybody got the answer? Nobody? Shall I solve? Shall I solve, students? M is equals to 4. Somebody says 2. Okay. Answers are changing. That means I need to solve it. Okay, we'll solve it. Okay. So somebody will turn on. Who will turn on mic and tell me the question? Question बताना है सिर्फ. एक्स क्यूब माइनस ऐसे बताना है. मैं दूसरे पेज पे लिखूंगा, तुम बताओगे. कौन बताएगा? Who's interested? Come on, take the chance. Kadambari always turns on her mic. Say, see, she's again putting her name. किसी और को नहीं बताना है, सिर्फ क्वेश्चन बताना है मुझे. मैं लिखूंगा, तो मुझे क्वेश्चन बताना. ठीक है? कादम्बरी, टेल मी क्वेश्चन. Yeah, tell me. Okay, sir. If x minus 2 X is a cube factor minus of x okay, cube minus yeah, mx huh, mx square mx square, plus okay, 10x पुढे सांग. minus 20, then हम्म, find the value of m. ओके, that's it. ठीक, मला इतकंच पाहिजे होतं. Plus 10x Fine, very good. ठीक. minus 20, So then या मी find the लिहिलं ते value बरोबर of लिहिलं ना? m. हा, लिहिलं ना ते मी आता? Okay, okay, good, great. Now keep your mic off. Okay, very good. So this is our polynomial and आपल्याला सांगितलेलं आहे, we have been told, हमें बताया गया है कि this is the factor of this polynomial. मतलब हमें x की वैल्यू कितना रखना है? 2 रखना है. x की वैल्यू 2 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 ना चाहिए. It should be 0 because this is a factor of this polynomial. So that's why if we put the value in this polynomial, it has to be 0, right? So put x is equals to 2. So 2 cube minus m 2 square plus 10 into 2 minus 20 is equals to 0. तो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, सबको समझ में आया? आई होप. ठीक है, किसी को नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिख दो. सो 2 क्यूब इज 8 minus 2 square is 4, so it would be 4m plus 10 into 2 is 20. 20 gets cancelled is equals to 0. So 8 minus 4m is equals to 0. So basically 4m is equals to 8 and m is equals to
8 by 4, so it would be equal to 2. So the value of m is 2. Value of m is 2. Who has given the correct answer? Kadambari has given the correct answer. m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 2 है. So this was the question. I don't think it is hard one. हमें सिर्फ x की वैल्यू 2 रखनी है, m की वैल्यू कुछ भी नहीं रखनी है, और इस पोलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वेट करना है. क्यों जीरो के इक्वेट करना है? बिकॉज वी हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. फैक्टर है मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा. ये अभी अभी हमने फैक्टर थ्योरम में सीखा, बराबर ना? सो दिस इज हाउ. So what are the remaining questions? Let me just see. 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. Okay, no worries. We'll take all the questions in the classroom. Okay. I think that's it for today. We will stop here, and the remaining questions we'll cover in the next class. And your doubts, I remember your doubts that you had a problem in linear division method, right? So we'll solve that also. And I think जो सिंथेटिक डिवीजन का था तो वो हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी हम उसे रिवाइज करेंगे. ठीक है? सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय एंड गुड नाइट. You are free to leave the class for today. Bye. Kadambari, which doubt you're talking about? Okay. P of x. Wait. Students, if you want to see this doubt, you can stay here. Okay. So P of x is equals to 5x square plus 8x minus 3, and Q of x is equals to 4x square plus 2x minus 18. Then P of x minus Q of x is equals to क्या? So just a second, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. किसी ने लेफ्ट किया क्या? विशाल है, वेदांत है, वैष्णवी है. आई थिंक देयर वर 5 स्टूडेंट्स और ओनली 4. आयुष ने लेफ्ट कर दिया. All right, Kadambari, don't worry. I'll take the screenshot of this question and we'll solve this question in the next class. Uh, स्टार्टिंग में ही हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? अभी आयुष ने लीव कर दिया ना, सो इट इज नॉट गुड. ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है कादम्बरी, डोंट वरी. ओके, या बाय. वेदांत, विशाल, लीव द क्लास. या बाय. थैंक यू, बाय.